السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ عنبر اور ناگ جو تھے وہ ایک سرائے میں آتے ہیں، وہاں ان کی ایک بدماش سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس بدماش کو بہت مارتے ہیں اور مار کر اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد عنبر اور ناگ جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 300 سال پیچھے چلے جانا۔ عنبر اور ناگ نے سرائے میں آ کر دم لیا۔ یار، آج تو صبح صبح جنگ ہو گئی تھی، ناگ نے اپنے کرتے کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ عنبر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، کہنے لگا، یہ تو کفر کے خلاف جہاد تھا۔ ناگ: ہاں، بے شک یہ جہاد تھا اور خدا نے ہمیں اس پر فتح دی۔ عنبر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کچھ دیر کے لیے شہر سے باہر کسی باغ میں ٹھکانہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ شہر کے لوگ یہاں ہمارا ناک میں دم کر دیں گے۔ ناگ نے کہا، بڑا نیک خیال ہے، کیونکہ یہ جن لوگوں نے شہر میں ہمارا جلوس نکالا ہے وہ ہمارا مزار بنانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، تو پھر چل کر کتب صاحب کی لاٹ کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جب قافلہ آئے گا تو یہاں ماریا کو دیکھنے واپس آ جائیں گے۔ دونوں صدیوں کے دوستوں نے دوپہر کا کھانا کاروان سرائے کی کوٹھڑی میں ہی کھایا، اس لیے کہ انہیں دلی شہر کے لوگوں کے کھانے پسند تھے، مگر نہ انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ پینے کی۔ اس وقت بھی باہر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یوں ہی وہ دونوں باہر نکلے، لوگ نعرہ لگاتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ ناگ نے عنبر سے کہا، بھاگو میاں، جہاں سے یہ آج ہمارا مزار بنا کر ہی دم لیں گے، اور دونوں ایک طرف کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ نعرہ لگاتے ان کے پیچھے دوڑے، مگر شہر کے دروازے سے باہر نکلتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ ایک دوست تو غائب ہو گیا اور دوسرے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ دیکھتے دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں بڑی کرنی والے نوجوان تھے، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ کتب صاحب کی لاٹ کے پاس پہنچ کر عنبر بھی رک گیا۔ وہ طوفان میل کی طرح بھاگا آ رہا تھا اور ناگ اس کے سر کے اوپر غائب ہو کر اڑتا چلا آ رہا تھا۔ ناگ نیچے اتر آیا۔ سانپ کا مورا اس نے اپنے منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ کتب کی لاٹ کے سامنے والے ککر کے گھنے درختوں کے نیچے بنے ہوئے خوبصورت گول چبوترے پر جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ دلی کی گرمی سے وہ بھی تنگ آ رہے تھے، مگر درختوں کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی تھی۔ کتب کی لاٹ کا سرخ پتھر دھوپ میں چمک رہا تھا اور ابھی اس کی سب سے اوپر والی منزل گری نہیں تھی۔ ساری منزلیں سلامت تھیں۔ یہ جگہ اس زمانے میں بڑی سنسان تھی، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ دھوپ ڈھلنے تک انہوں نے وہاں آرام کیا۔ ناگ تو بڑے مزے سے ٹھنڈی چھاؤں میں سو رہا تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ عنبر نے دیکھا کہ ناگ گہری نیند سو رہا ہے اور کھراٹے بھی لے رہا ہے۔ ناگ کے کھراٹے سانپ کے شور کی طرح ہوتے تھے۔ اگر کوئی آنکھ بند کرے تو اسے ایسا لگے کہ کوئی بڑا اژدہا پھنکار رہا ہے۔ عنبر کا جی چاہا کہ اس خوشگوار موسم میں سیر کرے۔ سیر سے واپس آنے کے بعد عنبر نے ناگ کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل دیے، اور سرائے میں جا کر انہوں نے معلوم کیا کہ میسور سے چلا ہوا قافلہ دلی کب پہنچ رہا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ قافلہ دوپہر کے بعد پہنچنے والا ہے۔ ناگ اور عنبر دونوں بڑے خوش ہوئے اور بے تابی سے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ماریا اسی قافلے میں پہنچنے والی ہے۔ ناگ اور عنبر نے سرائے کے چبوترے پر بچھی ہوئی ایک دری میں بیٹھ کر قہوہ پیا اور پھر باتیں کرنے لگے۔ جوں جوں قافلے کے آنے کا وقت قریب آ رہا تھا، ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ماریا سے مل کر دونوں
किसी दूसरे मुल्क के लिए रवाना होना चाहते थे। यूं ही नाग के दिल में ख्याल आया कि कुछ देर शाहबाग की सैर करते हैं। दोनों सराय से उठकर शहर के दरवाजे से बाहर निकलकर शाहबाग में आ गए। ये वही तारीखी बाग था जहाँ 100 साल बाद मुग़ल शहजादों का कत्लेआम होने वाला था। बाग के दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। गर्मी खूब पड़ रही थी, मगर बाग में दरख्तों के सायों के नीचे बड़ी ठंडक थी। वो बारादरी से गुजरकर एक मस्जिद में आ गए। यह संगे मरमर की बनी हुई छोटी सी मस्जिद थी, जहाँ शाही महल के उमराव जुमा की नमाज अदा करते थे। मस्जिद के सिन में नीम के घने दरख्तों की ठंडी छाँव थी। दोनों दोस्त उस छाँव में बैठ गए। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। उनको बातें करते करते नींद आ गई और वो सो गए। जब वो सोकर उठे तो दोपहर ढल चुकी थी। धूप का रंग सुनहरी पड़ रहा था। नाग ने आंखें मल कर कहा, यार हम काफ़ी देर सोते रहे हैं। अंबर बोला, हाँ कोई 2 घंटे तो सोए होंगे। चलो शहर चलते हैं, मारिया का काफिला आने ही वाला होगा, बल्कि कहीं उसे खो ना दें। दोनों बाग से निकलकर सड़क पर आए तो उन्हें सड़क पर कुछ तब्दीली सी महसूस हुई। जब वो सोने के लिए बाग में दाखिल हुए थे तो इस सड़क पर पत्थर ही पत्थर थे, जिन्हें कूट कर हमवार किया गया था। लेकिन अब सड़क पर एक भी पत्थर नहीं था। दरख्तों पर भी कोई परिंदा नहीं बोल रहा था। नाग ने अंबर की तरफ देख कर कहा, इस सड़क के पत्थर कहाँ चले गए? यही मैं सोचकर हैरान हो रहा हूँ। यहाँ तो पत्थरों की सड़क थी, अब मिट्टी उड़ रही है। क्या इस शहर में सड़क भी चुरा कर ले जाते हैं? अंबर बोला, कोई गड़बड़ हो गई है नाग। शहर का हुलिया पहले ऐसा नहीं था। मुगल अहद के 2 मंजिला मकान वहाँ नहीं थे। अब 1 मंजिला मकानों पर हुक्कों की जगह पर्दे गिरे हुए थे। एक दुकानदार सर पर बड़ी सी तुर्की गोल पगड़ी बांधे बैठा तरबूज बेच रहा था। अंबर ने अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने तुर्की लहजे में वालेकुम कहा और तुर्की में पूछा, क्या चाहते भाई? अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, 1 घंटे पहले तो यहाँ के दुकानदार उर्दू बोलते थे, ये तुर्की जुबान कहाँ से आ गई? नाग ने कोई जवाब ना दिया। वो किसी गहरी सोच में था। अंबर ने जेब से सोने की एक अशरफी निकाल कर दुकानदार को दी और तुर्की जुबान में कहा, 1 तरबूज दे दो हमें भाई। दुकानदार ने अंबर के हाथ से सोने का सिक्का लेकर उसे उल्ट पुल्ट कर गौर से देखा और फिर बड़ी बड़ी आंखें पूरी खोल कर बोला, ब्रदर ये सिक्का तुम कहाँ से लेकर आए हो? अंबर ने कहा, हमने दिल्ली में ही लिया है। दुकानदार ने दूसरे ग्राहकों को वो सिक्का दिखाकर कहा, भाइयों ज़रा देखो तो इस सिक्के पर किस बादशाह का नाम लिखा है? एक ग्राहक ने सिक्के पर नाम पढ़कर कहा, इस पर तो किसी शाह आलम सानी बादशाह का नाम लिखा है। दुकानदार ने सर खुजाते हुए पूछा, भाई ये किस मुल्क का बादशाह है? अंबर ने कहा, हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह है और लाल किले में इसी दिल्ली शहर में इसका दरबार लगता है। क्या तुमको नहीं मालूम? कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए और अंबर की इस बात पर हंसने लगे। दुकानदार ने सिक्का वापस करते हुए कहा, भाई तुम किस शाह आलम शाह बादशाह की बात कर रहे हो? नाग बोला, जो मुग़ल बादशाह है। कौन मुग़ल? दुकानदार ने तज्जब से पूछा। अब अंबर और नाग समझ गए कि उनके साथ क्या हादसा हो गया है। अंबर ने अपना शक दूर करने के लिए दुकानदार से पूछा, क्या दिल्ली पर मुग़ल बादशाहों की हुकूमत नहीं है? दुकानदार ने कहा, भाई दिल्ली पर तो इस वक्त शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत है। अंबर और नाग को एक झटका सा लगा और वो सर पकड़ कर बैठ गए। जब वो दोनों शाहबाग में सो रहे थे तो तारीख का वक्त एकदम से 300 साल पीछे चला गया था। ज़माना बदल गया था। अब दिल्ली पर मुग़लों की नहीं बल्कि शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत थी और शहर में ईरानी और तुर्की ज़ुबान ही बोली और समझी जाती थी। उर्दू अभी किसी को नहीं आती थी। लोग अंबर और नाग के लिबास को भी हैरत से देखने लगे। कोई कहता कि ये दोनों पागल हैं, उन्हें किले के पागल खाने में भिजवा दो। कोई कहता कि ये मरहटों के जासूस हैं, उन्हें फ़ौज के हवाले कर दो। इतने में 2 फौजी वहाँ आ गए। उन्होंने सारा मामला सुना और सोने के सिक्के भी देखे। दोनों फौजियों ने पुराने अफ़गानों की तर्ज पर गोल पगड़ियाँ बांध रखी थीं।
बड़ी घेरे दार शलवारें और लंबे कुर्ते थे। कमर पर ढाल बंधी थी। ये पहलू में खमदार तलवारें लटका रखी थीं। कंधे पर तीर कमान भी थे। अंबर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं। फौजी बोला, तो फिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अंबर और नाग अब उन्हें क्या बताते कि वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करे तो फौजी और ज़्यादा शक में उलझ जाते। आखिर उन्होंने अंबर और नाग को गिरफ्तार कर लिया और कहा, तुम दरबार में पेश किए जाओगे। तुम मरहटों के जासूस हो, चलो हमारे साथ। अंबर और नाग अगर चाहते तो वहाँ बड़ी आसानी से फरार होकर भाग जाते, लेकिन नाग ने अंबर से कहा, भाई जब ये इनकलाब आ ही गया है तो चलो ज़रा दरबार की सैर कर लें। अब तो खुदा जाने वो काफिला भी कहाँ तितर बितर हो गया होगा जिसके साथ मारिया सफ़र कर रही थी। फौजी दोनों को घोड़े पर बिठाकर किले के अंदर ले गए। किले का वो एक रूप नहीं था, ये एक अर्जी सा किला लगता था जिसकी दीवारें यूं ही बड़े बड़े पत्थर रखकर उठाई गई थी और इस पर जहाँ बाद में मुग़ल बादशाहों ने किला बनाया, भूरे रंग के पत्थरों का एक महल के किले के अंदर बना हुआ था। इस महल में शहाबुद्दीन घौरी का गवर्नर दरबार लगाता था। घौरी जो कि शुमाली हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम कर चुका था, इस वक्त मरहटों के साथ जंग करने इलाहाबाद की तरफ गया हुआ था, जहाँ मरहटों का एक लश्कर दिल्ली पर हमला करने आ रहा था। गवर्नर के सामने अंबर और नाग को पेश किया गया। गवर्नर ने गौर से उन दोनों को देखा और वही सवाल किया कि तुम कौन हो? अगर सच बता दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अंबर ने कहा, जनाब वाला, हम मुसलमान हैं और शाहबाग में सो रहे थे। जब उठे तो वहाँ एक चबूतरे पर हमें ये सोने के सिक्के मिले। हम मुल्क मिस्र के रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। अंबर ने गवर्नर को ये नहीं बताया था कि वो तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं और शाहबाग में सोते सोते शाह आलम सानी का अहद निकल गया था और वो 300 बरस पीछे चले आए हैं, क्योंकि ये अंबर, नाग और मारिया का वापसी का सफ़र था और वो वापस 5000 साल पुराने मिस्र की तरफ सफ़र कर रहे थे। गवर्नर को उनकी बात पर यकीन न आया। उसने हुक्म दिया कि जब तक सुल्तान गौरी जंग से वापस नहीं आते, इन जासूसों को कैद में डाल दिया जाए। तो सामीन, इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है और आगे आप देखेंगे कि अंबर और नाग को कहाँ ले जाते हैं और जो बादशाह है वो इनके साथ क्या सलूक करता है। क्या वो इनको जेल में डाल देगा या अंबर और नाग क्या करने वाले हैं, ये आप जानेंगे आइंदा की किश्त में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और ठहरिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी और आप आइंदा की किश्त नंबर 3 जो है वो सुन लेंगे। शुक्रिया।